Hello students, I'm Imani Sharma, your educator. I warmly welcome you all to yet another session of our YouTube class, right? So आज के particular YouTube video में we will be moving forward and solving questions related to your unit of ICT, and this is the part 3 of the same series, right? On part 1 and 2 we have covered questions from 6th, 7th and 8th of December, right? So आज की क्लास में, आज के लेक्चर में we will be moving forward with the questions from 11th December 2023. This is part 3 of ours, right? So I would highly appreciate that if you guys make sure that you all are paying heed to the question, reading it carefully and then moving forward by answering them. If you find anything new in here, also make sure to incorporate them in your notes. कुछ भी नया देखने के लिए मिले, कुछ नया फैक्ट एटसेट्रा, मेक श्योर करना है कि उसको अपनी नोटबुक्स में लिख के रखना है, ठीक है? सो पहला क्वेश्चन देखते हैं. पहला क्वेश्चन है, अ मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस refers to a number which uniquely identifies the device on the internet and is usually made up of bits. तो इसमें कितनी बिट्स होती हैं ये आपको बताना है, ठीक है? मैक एड्रेस में हाउ मेनी बिट्स आर देयर? I'll keep on moving forward by telling you the answers. तो आप लोग को लगे that you need your time, you can pause the screens as well, right? The right answer to this question is option C, that is 48 bits का MAC address होता है. अच्छा, MAC address होता क्या है? MAC address is a sort of an address. Now whenever you are doing MAC address, IP address, GIF, MP3, ये सभी चीज़ें जब आप पढ़ रहे हो, या तो आप इनको abbreviations की तरह लो, इनके full forms you guys need to understand and know, ठीक है? Coming back again to what do we know MAC address as? MAC address होता तो होता क्या है? MAC एड्रेस बच्चे आपका एक ऐसा एड्रेस होता है which is also known by the name of a local address, and ये ऐसा एड्रेस होता है which is given by the manufacturer of the device. यानी कि आप जब भी whenever you're buying a new computer, you're buying a new mouse, so on and so forth, this particular is the address जो सबके लिए, and this address is unique for every device. It is unique for every device, ठीक है? ये ऐसा एड्रेस है, आपने कोई डिवाइस खरीदी, उसके ऊपर जो आपका मैन्युफैक्चरर होगा, ही विल बी प्रोवाइडिंग यू विद दिस पर्टिकुलर एड्रेस, ताकि आपकी जो डिवाइस है वो आइडेंटिफाई हो सके, राइट? एंड इट इज दैट्स वाई यूनिक, क्योंकि दो डिवाइसेस अगर होंगी सेम नाम से तो ऑफ कोर्स आप कंफ्यूज हो जाओगे. तो इट इज अ यूनिक एड्रेस गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर, राइट? 48 बिट्स का होता है इसका साइज. नेक्स्ट क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं. डिनायल ऑफ सर्विस अटैक इज द लार्ज नंबर ऑफ रिक्वेस्ट सेंट एट द सेम टाइम टू द वेब सर्वर, thereby causing the server to crash. Statement 2 says, virus is a self-replicating malicious software causing a computer to run slowly. What do you think is the answer? This is option A. The other options are given here. So you can pause your screens, read the question carefully, read the options carefully, and then move forward with the answers. What do we have as the answer here? The right answer is option A, यानी कि दोनों की दोनों statements जो हैं, both of them are true. डिनायल ऑफ सर्विस एक्ट क्या होता है, जो अटैक क्या होता है, सॉरी, लार्ज नंबर ऑफ रिक्वेस्ट. जैसे मान लीजिए यू वांट टू गो टू अ पर्टिकुलर वेबसाइट, तो आपको वहां की सर्विस नहीं मिल रही है. ये क्यों हो रहा है? बिकॉज दैट वेबसाइट इज हैविंग द DOS अटैक ऑन इट. यानी कि कई बार होता है ना, आप किसी वेबसाइट पे बार बार रीलोड करते जा रहे हो, तो जो इंटेंडेड यूजर्स हैं वो उस पर्टिकुलर वेबसाइट्स को रीच ना कर पाए, इसलिए DOS अटैक ये होता है. तो उस पर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट हो जाती है, इस वजह से वेबसाइट क्रैश हो जाती है. कई बार एरर मैसेज होता है कि ये वेबसाइट तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, सो ऑन एंड सो फोर्थ, या वेबसाइट का सर्वर डाउन है, ठीक है? सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है कि वायरस जो है इट्स अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग मलिशियस सॉफ्टवेयर. मलिशियस सॉफ्टवेयर यानी कि ये एक तरीके का मालवेयर है
कॉजिंग द कंप्यूटर टू रन स्लोली, आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाता है तो वो स्लो हो जाता है ना, हैंग होने लगता है, इट स्लोज डाउन एज वेल, ठीक है, इस वजह से बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. Next question. Which of the following statements about quantum computing are correct? This was a new sort of a question that they had asked. So what do you think is the answer here? What is the answer here? The answer to this particular question is option A here, that is 1 and 2 only. Quantum computing जो होती है उसमें quantum physics is a branch of physics, उसके principles apply होते हैं, बिल्कुल correct. And quantum bits को qubits कहा जाता है, which are used as the information unit to give information. But ये बात गलत है कि quantum computers जो हैं वो ऐसी radiation निकालते हैं जिससे ह्यूमंस को डेंजर्स हो सकते हैं, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है. ऐसा कुछ नहीं है. क्वांटम कंप्यूटर्स इवन दे वर्क रियली लाइटली एंड इन लोअर टेम्परेचर्स, तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि रेडिएशंस वगैरह निकले. सो ऑफ कोर्स दीज टू आर करेक्ट, द थर्ड वन इज इनकरेक्ट. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following facilities are available in the word processing software such as Microsoft Word? इसमें Microsoft Word में इनमें से कौन सी जो है आपकी facilities available हैं? Find and replace, mail merge, spell check and thesaurus, automatic recalculation. What is the answer here? The answer to this question is option A here. Option A here. दैट इज फाइंड एंड रिप्लेस, ताकि आपको कोई मिस्टेक मिल गई है ना, उसको आप फाइंड करके तो कंट्रोल F एंड देन यू कैन रिप्लेस इट एज वेल. राइट, मेल मर्ज, इफ यू वांट टू सेंड द सेम मेल टू डिफरेंट रेसिपिएंट्स तो आप मेल मर्ज कर देते हो डॉक्यूमेंट को, इट बिकम्स ईजियर. देन स्पेल चेक एंड थिसॉरस फॉर स्पेलिंग चेक एंड थिसॉरस टू प्रोवाइड सिनोनिम्स, इंटोनिम्स एटसेट्रा. राइट, ऑटोमेटिक रिकैलकुलेशन MS वर्ड का नहीं बल्कि MS एक्सेल में यूज किया जाता है, स्प्रेडशीट में ये चीज यूज की जाती है, हेंस नंबर 4 इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following pair of acronyms and its expansion are incorrectly matched? Incorrectly matched. LAN, local area network, metropolitan area network, wide area network या virtual personal network. Which amongst them are incorrectly matched? The right answer to this question is option D. VPN incorrectly matched है. Virtual private network होता है इसका literal expansion और full form. Right? So when we cover them in the classroom as well, I tend to make you guys note these things down, provide you all in the homeworks to learn as well. Right? Next question. 3D printers are primarily used in CAD. OLED requires some form of backlighting so that the screen can be lit up. What do you think is the answer here? The right answer is ऑप्शन C here, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है. 3D प्रिंटर्स आर प्राइमरीली यूज्ड इन CAD. CAD स्टैंड्स फॉर, मैंने पुरानी वीडियो में भी बताया था आपको, कंप्यूटर एडेड डिजाइन. ठीक है, तो कंप्यूटर से बनने वाले डिजाइन्स के लिए, उनको प्रिंट करने के लिए 3D प्रिंटर जो है दे आर प्राइमरीली यूज्ड. राइट, नाउ OLED रिक्वायर्स सम फॉर्म ऑफ बैकलाइटिंग सो दैट द स्क्रीन कैन बी लिट अप. नो, आप लोग ने देखा होगा आजकल के टाइम पे LEDs के बाद OLED का OLED स्क्रीन एटसेट्रा का जो है we can see them, we can find them in the market now. Right, now quick question of homework for you all is you will drop down in the comment section the full form of OLED. ठीक है, ये आप लोग बताएंगे. मैं बताती हूँ, LED जो है, लाइट एमिटिंग डियोड जो है, वो रिक्वायर करता है लाइट बैक से पड़े ताकि इमेजेस क्लियर हो, रेजोल्यूशन अच्छी हो टीवी की, स्क्रीन की, मॉनिटर की.
लेकिन ओलेड को लाइट की जरूरत नहीं होती. इट इज नेचुरली यू नो हैविंग दैट लाइट. इट डज नॉट नीड द बैक लाइट टू लाइट इट अप, राइट. हेंस ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट, which one of the following statements relevant to the trends in modern information technology is or are correct? What is the right answer here? ये आपका पूरा क्वेश्चन है. टेक योर टाइम. The right answer to this question is option A here. That is, one only is correct, the others are incorrect. A wearable device capable of activity tracking as the number of steps walked and heart rate is an example of WiMAX. No, WiMAX is an example of providing internet connection to rural or undeserved areas, etc. ठीक है. तो वो अंडर सर्व्ड एरियाज को अगर हम देखें, वहां पे नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराने के लिए वाईमैक्स यूज किया जाता है. इट्स नॉट यूज्ड इन द वेयरेबल डिवाइसेस एटसेट्रा. नो, सिर्फ इस एक वर्ड की वजह से इंटायर स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. तो ध्यान से पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन. नेक्स्ट है, अ कलेक्शन ऑफ नोड केपेबल ऑफ एनवायरमेंटल सेंसिंग, लोकल कंप्यूटेशन और कम्युनिकेशन विद इट्स पीयर्स और विद अदर हाई परफॉर्मेंस nodes capable is called a geographic information system. No, it's not known as a geographic information system, but rather it's wireless sensor network. इसको हम wireless sensor network बोला जाता है. This is incorrect. Hence, only one हमारा correct है, बाकी दोनों incorrect. Next question. साइबर अटैक दिए हुए हैं, मैलवेयर दिया हुआ है, एंड दीज आर योर ऑप्शंस हियर. व्हाट डू यू थिंक हियर इज द राइट आंसर? You can match the options here. Look at the options here. The right answer to this question is option A here. That is A3. That is spyware. स्पाईवेयर का नाम से ही पता चल रहा है कि कोई आपके ऊपर नजर रख रहा है. somebody is spying you. So if you are entering your password etc on your screen, some keylogger will record that key. ठीक है, एंड आपके लैपटॉप को, फोन को एक्सेस कर सकता है. ठीक है. देन वी सी रैंसमवेयर. बी जो है आपका है 1. बी इज टू 1. फिशिंग वेरी प्रीडोमिनेंटली आस्क्ड इन योर पेपर्स. अकेले में भी इसका क्वेश्चन पूछा जाता है. टू फेक वेबसाइट एक ईमेल भेजी जाती है. अब ईमेल को पीपल थिंक कि हाँ जी ईमेल आ रही है तो ईमेल इज सम सॉर्ट ऑफ अ डिसेंट कम्युनिकेशन मोड हियर. सो दे क्लिक ऑन दैट लिंक एंड वो अनवांटेड वेबसाइट्स पे चले जाते हैं. देन वी हैव रैंसमवेयर. रैंसमवेयर इज योर ऑप्शन 4 हियर. ठीक है, ये आपका ऑप्शन 4 है, यानी कि रैंसम लेना, फिरौती लेना, ताकि आपका जो डेटा द हैकर जिन्होंने हैक कर लिया है उसको रिलीज करने के लिए वो आपसे रैंसम यानी कि फिरौती की मांग करते हैं. राइट. एंड फार्मिंग इज this one is farming here. This is your option D here. Downloading a malicious code to redirect users to fake website ताकि उनकी personal details जो हैं, and that fake website will be looking exactly like the original one, right? तो users usually पता नहीं कर पाते, and farming is a combination of phishing and farming. तो लेके जाया जाता है नई वेबसाइट्स के ऊपर जो कि फेक होती हैं. ठीक है. Hence option A is the correct answer here.
नाउ फॉर होमवर्क आई हैव आस्क्ड यू विल ड्रॉप डाउन। होमवर्क क्वेश्चन आपका यही है कि आप ओलेड की जो है फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आप ओलेड की फुल फॉर्म जो है कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ऑल्सो द फुल फॉर्म ऑफ HTML, राइट, HTML की फुल फॉर्म बताएंगे एंड XML की फुल फॉर्म बताएंगे। यू विल ऑल्सो टेल दैट व्हाई दीज टू लैंग्वेजेस आर यूज्ड, किस लिए यूज की जाती है लैंग्वेज, ठीक है, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग कितने अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर योर पेपर 1, राइट। आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर क्वेश्चन, अनदर सेट ऑफ क्वेश्चंस। टिल देन कीप ऑन स्टडिंग, गुड लक, हैव अ गुड डे, राइट।